Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss your chapter 8th soil resources. Okay, and in this chapter we discuss the topic soil erosion and types of soil erosion. Okay, in the in this chapter in last video we discuss what is the soil and their types of soil and formation of soil. Okay, so basically we discuss six type of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, and desert soil. Okay, so we start here. Next topic of this chapter: soil erosion and their types. Okay, so first of all, what is the soil erosion? Basically, definition of soil we already discussed in the last video. The loose material of topmost part of the soil earth surface is called soil. Means loose particles, those are lie on the topmost part of the earth surface, उसको कहते हैं soil. और soil erosion क्या है? Removal of topmost layer of the earth. ये simple language कि removal of topmost part of the earth surface is called soil erosion. Okay, और soil erosion is the removal of soil by the force of nature like wind and water more rapidly than the various soil forming process can replace it. Means सिंपल सी डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड सॉइल इरोजन. और जो टॉपमोस्ट पार्ट जो रिमूव हो रहा है बाय द विंड, बाय द वाटर, ठीक है, इट मे बी बाय द ग्लेशियर. ओके, एंड जो वाटर इरोजन है इट मोर फास्टली हो रहा है एज कम्पेयर टू सॉइल फॉर्मेशन से. ओके, सो जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस. मीन्स जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है और इरोजन की जो प्रोसेस है, दोनों में क्या है, भी कैसे बोल सकते हैं बैलेंस बना हुआ है. लेकिन ये जो बैलेंस है फॉर्मेशन और इरोजन में डे बाय डे क्यों रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बाय द, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी ह्यूमन फैक्टर के थ्रू. ओके, मीन्स हमारी जो सॉइल फॉर्मेशन है और इरोजनल जो प्रोसेस है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है. लेकिन ये बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स. ओके, नेचुरल के थ्रू in some time heavy rainfall occur, due to that your soil uppermost part of the soil remove, and due to the human activity like deforestation, पेड़ों को हम काट रहे हैं, due to that upper part of the soil easily remove हो रहा है. सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो ये बैलेंस बना हुआ है सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन के बीच में, वो डे बाय डे डिस्टर्ब होता जा रहा है. ओके, so if we talk about types of soil erosion, there are two types of soil erosion: water erosion or wind erosion. Means sometimes your soil erode by the water or sometimes by the wind. So first we discuss here water erosion, and after we discuss wind erosion. So water erosion, what is the powerful agent of soil erosion? सबसे ज़्यादा सॉइल जो इरोड हो रही है उसकी जो पावरफुल जो फैक्टर है वो आपका है वाटर. ओके, और कुछ ऐसे फैक्टर्स है ड्यू टू दैट आपकी सॉइल रिमूव हो रही है. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस शीट इरोजन. सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड over a large area by running water, it is called sheet erosion. Sheet means when upper part, suppose को this is your earth surface, so many layer, when remove the uppermost part, जैसे आपका ये पेज टर्न कर रहा हूँ like this, कि when only upper part is removed is called sheet erosion. Okay, और किसके थ्रू रहा है, by the running water. Okay, और which area are affected this type of erosion? So especially the unprotected land are most susceptible. means powerful. कि इस तरह का जो इरोजन है वो कहाँ ज्यादा को मिला है, अनप्रोटेक्टेड, जहां पर आपकी लैक ऑफ वेजिटेशन है, जहां पर वेजिटेशन
नहीं है. ओके, सो जस्ट सी हियर, दिस इज सरफेस टॉमोस्ट पार्ट व्हेन अपर पार्ट रिमूव हो रहा है. ओके, जस्ट सी हियर शीट इरोजन when remove the only uppermost part of the earth surface called sheet erosion. Okay, and sheet erosion specially कहाँ होगा, where अनप्रोटेक्टेड लैंड होगा, जहां पर वेजिटेशन नहीं होगी. ओके, वहां पर आपका होगा सीट इरोजन. क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट मींस removal of topmost layer by the running water is called sheet erosion, or this type of erosion or we can say occur in those areas where lack of vegetation. Okay, and now second is real erosion, is also very easy, just understood करना है. फर्स्ट हमने डिस्कस किया शीट इरोजन. ये क्या हुआ, जब आपकी रेनफॉल लाइट रेनफॉल हैवी रेनफॉल होगी तो शीट नहीं होगा बेटा, तो फिर वो ज्यादा एरिया को इरोड कर देगा. ओके, जब आपकी लाइट रेनफॉल हो रही है और आपका क्या है, लैक ऑफ वेजिटेशन होगा. ओके, अब रियल इरोजन क्या है, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ शीट इरोजन. ओके, आफ्टर शीट इरोजन सेकंड आपकी जो स्टेज है रियल इरोजन. इट इरोजन कंटिन्यू मींस बी के से कि जब शीट इरोजन हो रहा है, आफ्टर दैट कंटिन्यूसली रेनफॉल अकर हो रही है, देन इरोजन भी कंटिन्यू होता रहेगा अनचेक्ड फॉर अ सफिशिएंट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम तक अनचेक्ड मींस इरोजन स्टॉप नहीं होगा. ओके, एंड स्मॉल फिंगर शेप ग्रूव्स, ग्रूव्स मींस अ लॉन्ग डीप कट. ओके, जैसे बड़ी स्मॉल ड्रेस होते हैं, यू कैन सी बोथ साइड ऑफ द रोड, स्पेशली पंजाब जब रेनफॉल होती है तो जो रोड के बोथ साइड जो सॉइल होती है वहां पे एक स्मॉल स्मॉल ड्रेन्स बन जाती है. ओके, लाइक दिस यू कैन सी हियर, जब रोड के बोथ साइड या एनीवेयर जहां कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रही है और आपके अर्थ सरफेस पे स्मॉल 1-2 इंचेस डीप कट लग जाते हैं. शीट इरोजन में क्या था, ओनली अपर मोस्ट पार्ट रिमूव हो रहा है. ओके, एंड हियर 2 or 3 इंचेस डीप कट हो जाते हैं. ओके, इनको बोलते हैं हम रियल इरोजन. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ शीट इरोजन. इट सॉरी इफ इरोजन कंटिन्यू अनचेक्ड फॉर अ सफिशिएंट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये अगर स्टॉप नहीं होगा तो स्मॉल फिंगर शेप ग्रूव्स मींस डीप कट लग जाएंगे विच आर फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, जो कि कुछ सेंटीमीटर डीप कट होते हैं. ओके, सो इस तरह का जो पीरियड होगा लॉन्ग पीरियड टाइम तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है. ओके, सो increase in the number and also become deeper and wider and resemble means looks like कि किस तरह वो दिखता है, that of the twigs means a small tree branch, we can say a small thin branch बोल सकते हैं बेटा. ओके, थिन ब्रांच जो एक लाइक ट्री शेप होती है उसकी तरह में दिखता है, जो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसकी तरह ड्रेस बन जाती है. ये आपका क्या है, रियल इरोजन. ओके, इट इज द सेकंड स्टेज. And if erosion continuously unchecked for a sufficient time, small finger shaped grooves which are few centimeter in depth many develop on the landscape, बहुत सारी क्रिएट हो जाती है. ओके, और इट लुक्स लाइक अ फिंगर या भी कैसे और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह दिखती है. क्लियर? इट इज द सेकंड टाइप्स ऑफ इरोजन. ओके, so now third is gully erosion. This is the third stage of sheet erosion. With further erosion of the soil, the rill may be deepened and become enlarged and arc and are ultimately turn into gullies. Just see here carefully. Sheet erosion क्या था, where removal the only uppermost part. Okay, रिल में था जब कंटिन्यूसली रेनफॉल और हो रही है एंड 2-3 इंचेस या फ्यू सेंटीमीटर डीप कट लग जाते हैं और इट लुक्स लाइक अ स्मॉल थिन ट्री ब्रांच, सो उसको होते हैं रियल इरोजन. जब कंटिन्यूसली अगेन रेनफॉल होती रही है और यही कट जो होते हैं और डीप हो जाते हैं 1 या 2 फीट या 1 मीटर अप टू 1 मीटर तक, तो वो क्या है, गली इरोजन. लाइक सी हियर डायग्राम कि मींस ऊपर से नीचे तक नियर अबाउट 2 or 3 फीट डीप कट लग जाते हैं. ठीक है, तो जब रेनफॉल कंटिन्यू होती रहेगी इरोड होता रहेगा मटेरियल और ये 2 or 3 फीट और डीप कट हो जाते हैं, उसको होते हैं गली इरोजन. क्लियर? तो दिस ईयर
तो दिस इज अ थर्ड स्टेज ऑफ शीट इरोजन विद फर्दर इरोजन ऑफ सॉइल द रिल मे बी डीपन, जब का रिल इरोजन और डीप हो जाएगा एंड बिकम इन लार्ज और लार्ज हो जाएगा एंड आर अल्टीमेटली टर्न इनटू गलीज. ओके, द मेन कॉज ऑफ गली इरोजन is the removal of vegetation, particularly tree, with their widespread binding roots. जब कोई ट्री है, सपोज को दिस ट्री, ठीक है, जब ट्री को कट करते हैं और साथ में इसकी रूट्स भी कट कर देते हैं तो आपकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड अप करके रहती है. ओके, और व्हेन रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपकी मटेरियल जो है, जो सॉइल जो है वो लूज होगी और इजिली रिमूव हो जाएगी. क्लियर? तो दिस इज गली इरोजन. बहुत ईजी है. शीट में मींस ओनली अपर मोस्ट पार्ट रिमूव हो रहा है बाय द लिटिल रेनफॉल. ठीक है, रिल में व्हेन रेनफॉल कंटिन्यूअसली अकर फॉर द सफिशिएंट टाइम, देन आपकी जो सॉइल है उसमें और फ्यू सेंटीमीटर डीप कट लग जाते हैं और की जो शेप है लुक्स लाइक स्मॉल थिन ब्रांच ऑफ ट्री. ओके, तो उसको बोलते हैं रिल इरोजन. एंड कंटिन्यूसली अगेन रेनफॉल होती रहेगी तो आपकी वही 2-3 इंच डीप कट और डीप होके अबाउट 2-3 फीट डीप हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम गली इरोजन. ओके, एंड नाउ गली कट up agricultural land and the entire area may be turned into the badland. टोग्राफी मीन्स जो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है सम टाइम ड्यू टू द गली इरोजन वहां पर डीप कट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है बैड लैंड में. बैड मीन्स बैरन लैंड में, नथिंग ग्रो देयर, जहाँ की फर्टिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. ओके, गली इरोजन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिवाइंस. रिवाइंस जब गली और डीप हो जाती है तो उसको रिवाइंस नाम दिया जाता है. ओके, और रिवाइंस जो है या गली जो है स्पेशली मध्य प्रदेश में चंबल रिवर के सराउंडिंग देखने को मिलती है. ओके, स्पेशली मध्य प्रदेश में चंबल रिवर देयर और चंबल रिवर के सराउंडिंग में ये गली इरोजन देखने को मिलता है. क्लियर? सो स्ट्रीम बैंक इरोजन. अब स्ट्रीम बैंक क्या है कि आपकी पर्टिकुलर जो रिवर जा रही है उस रिवर के साथ साथ जो एरिया होता है वहां का इरोजन होना. ओके, यू नोट होगी वाटर जब फ्लो करता है अपने साथ बहुत सा मटेरियल कैरी करता है और सराउंडिंग एरिया को भी इरोड करके चलता है. ओके, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इरोड्स द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. जब रिवर फ्लो करती है तो सब बहुत सा मटेरियल कैरी करती है. दिस टाइप ऑफ इरोजन जब वाटर फ्लो कर रहा है तो अपने साथ साथ जो लैंड है वो उसको भी इरोड कर लेता है. So this type of erosion is more prevalent in the flood plain of Ganga, Yamuna and other rivers. जो गंगा यमुना other rivers है those are coming from the Himalayas तो वो erosion करती हैं. As a result of stream bank erosion, large area of agricultural land in the state of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have been transformed into ravines. Ravine means गली का जो broad रूप है. गली में 2-3 फीट होती है डीप कट, जब और डीप हो जाता है तो रिवाइंस बोलते हैं. ओके, सो ड्यू टू दैट स्ट्रीम बैंक भी बोल कैसे कि स्ट्रीम बैंक इरोजन के थ्रू हमारा एरिया और डिस्ट्रॉय हो जाता है. जैसे है व्हेन यू रिवर फ्लो इट कट द सराउंडिंग ऑफ द रिवर. ओके, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम बैंक इरोजन. जब रिवर जा रही है तो उसके साथ साथ एरिया को भी इरोड करके ले जाती है. ओके, एंड आफ्टर वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट shore erosion. Shore means this type of erosion is widespread along the coast, particularly eastern coast where the flood and storms are common. Just here, this is your India. southern part का स्पेशली जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ बहुत सारे हमारे साइक्लोन्स ऑरिजिनेट होते हैं और ये स्ट्राइक करते हैं विद द ईस्टर्न घाट. ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो इस एरिया में जब आपकी सी की तरफ से जो वेव्स आएंगी और स्ट्राइक करेंगी और ड्यू टू दैट यहाँ पर इरोजन करेंगी उसको बोलते हैं हम शोर इरोजन. शोर तक किनारा जो सी और लैंड जहाँ आपस में मीट कर रहे हैं दैट प्लेस ड्यू टू द सी वेव्स एरिया आपका इरोड हो जाता है, ये कट जाता है. ठीक है, दिस इज शोर इरोजन. एंड नाउ स्लिप इरोजन ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल. सपोज को दिस इज माउंटेन, ठीक है, और यहाँ बहुत सारी रॉक्स है या बहुत सारा लैंड आपका. ठीक है, अब क्या हो रहा है ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, जब रेनफॉल हैवी होगी वाटर परकुलेट. परकुलेट मींस वाटर एंटर करेगा इस माउंटेन की साइड. ओके, या किसी एनी पर्टिकुलर रॉक की साइड इनटू द सॉइल until it is unable to penetrate further by underlying impervious rocks. मीन्स ये पानी जब तक एंटर करेगा जब तक उसकी जो कैपेसिटी है पूरी वाटर को ऑब्जर्व करेगी तब नहीं हो जाती है. ओके, आफ्टर क्या होगा, एक तो ये ऑन द स्टीप स्लोप है, सेकंड
वाटर इसके साथ एंटर कर गया, और वाटर कब तक एंटर किया, जब तक पूरी तरह से वाटर से फिल नहीं हो गया। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब वाटर पूरी से फिल हो जाएगा तो वाटर के साथ ये फ्लो कर जाएगा डाउनवर्ड साइड, इसको होते हैं स्लिप इरोजन, भी कैसे, लैंड स्लाइडिंग। स्लिप इरोजन मींस लैंड स्लाइडिंग। ओके, तो द हैवी मॉइस्चर laden soil often come down bodily, resulting in a landsliding, means like a landsliding। आपका ये माउंटेन है, ये हाई स्टीप स्लोप एरिया में वेयर हैवी रेनफॉल अकर, फर्स्टली वाटर जो है परकुलेट होगा एंड एंटर करेगा इनसाइड, एंड आफ्टर दैट कब तक एंटर करेगा, जब तक पूरे से वाटर से फिल हो जाता है, जब वाटर से पूरा फिल हो जाएगा आफ्टर दैट इट फ्लो डाउनवर्ड साइड अकॉर्डिंग टू स्लोप। ओके, इसको होता है लैंड स्लाइडिंग, स्लिप इरोजन। ओके, सो here discuss 6 type of erosion. First is sheet erosion, rill erosion, gully erosion, and stream bank erosion, shore erosion, or slip erosion. Okay, and now second part. So firstly we discuss first part A, water erosion, or in the water erosion we discuss the 6 type of erosion. First is slip, first is sheet erosion, second is rill, third gully, fourth stream bank erosion, and fifth shore erosion, or sixth slip erosion. Okay, so we start wind erosion, second part of the type of erosion. Wind is a powerful agent of erosion in arid and semi arid region, means आपकी जो wind erosion है ये more powerful है in which region, arid और semi arid। arid होता है ड्राई, ठीक है, और जो सेमी जो हाफ ड्राई है, ठीक है, नॉट फुली क्लियर, तो विद लिटिल रेनफॉल, जहां लेस रेनफॉल होती है उधर। ओके, अब जहां रेनफॉल कम होती है, आपको देखो डेजर्ट में क्यों होता है, सेमी में ड्राई, से एरिड को हम डेजर्ट रीजन में बोल सकते हैं, जो ड्राई होता है। सो ड्राई में होता है लैक ऑफ वेजिटेशन होती है, जब लैक ऑफ वेजिटेशन होगी तो आपका जो मटेरियल होगा वो लूज होगा, और लूज होगा तो बाय द विंड इजिली वो लिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, सो विंड कैन लिफ्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल, क्योंकि अपर मोस्ट पार्ट क्या होती है, फर्टाइल होती है, यही तो सॉइल है जो दो आर मोस्ट फर्टाइल। अब विंड क्या होती है, लिफ्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल, जो वैल्यूएबल है जो फर्टाइल सॉइल उसको लिफ्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम वन एरिया, एक एरिया से करती है, एंड डिपॉजिट टू द अनदर एरिया, और अनदर एरिया में जाके डिपॉजिट कर देती है। क्लियर, सो द विंड इरोजन इज वेरी डेंजरस टाइप ऑफ इरोजन। इसको डेंजरस क्यों बोला, बिकॉज ड्यू टू विंड most of the desert of the world are expanding, और how it is expanding, जैसी है आपका डेजर्ट रीजन यहाँ अप टू दिस वन यहाँ तक है, जब यहाँ से फास्टली विंड फ्लो करेगी दे पिक अप द लूज पार्टिकल्स और उसको सराउंडिंग एरिया में जाके डिपोजिट कर देगी, तो ड्यू टू दैट आपका जो डेजर्ट रीजन है वो डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई रिटन हियर कि इट इज अ वेरी डेंजरस type of erosion, because due to wind most of the desert of the world are expanding. Okay, so wind क्या, it is a powerful agent of erosion in the especially arid or semi arid, means desert or semi desert region. Okay, and where rainfall very little. Okay, we can say less than 25 centimeter rainfall, and wind can be lift valuable topsoil from one place to and deposit in another place. So the wind erosion is very dangerous type of erosion, because due to the wind most of the desert of the world are expanding, because they carry from this part and deposit another part. Okay, so due to that your desert day by day increased. Okay, so this is your topic to discuss here, soil erosion and their types. Okay, soil erosion means removal of topmost part of the earth surface, और remove कैसे होगा, by the नेचुरल और बाय द ह्यूमन फैक्टर्स, दो हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, वाटर और विंड। ओके, एंड इनसाइड द वाटर वी डिस्कस 6 type of water erosion. Sheet means when we remove uppermost part. Okay, second we discuss rill, when to few centimeter deep cut, ठीक है, उसको रिल इरोजन। और व्हेन रेफॉल कंटिन्यूसली इरोजन कंटिन्यू, देन 2 or 3 feet deep cut is called gullies. Okay, and gullies are continuously deep downward side is called ravines. Okay, or ravines or gullies especially occur in the Madhya Pradesh river, Chambal river basin. Okay, and now after we discuss stream bank erosion, and after that we discuss shore erosion or slip erosion, and last B part we discuss wind erosion. Okay, and thank you.